السلام علیکم. اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں. شکریہ. وہ اونچی آواز میں بولا تو وہاں موجود سبھی لوگ حیرانی سے تیمور کو دیکھنے لگے، جو غضبناک حالت میں انہی سب کو دیکھ رہا تھا. پہلے تو اس ٹوٹی پھوٹی عمارت میں موجود کسی کو بھی یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ تیمور اپنے ساتھ وہ لڑکی کیوں لایا ہے. حالانکہ ان کے مشنز کا رول تھا کہ کوئی بھی کسی اور کو ان کے ساتھیوں کے علاوہ اس عمارت میں نہیں لا سکتا. پھر تیمی نے ایسا کیوں کیا؟ رومان آگے بڑھا اور تیمور کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر بولا، یار یہ لڑکی کون ہے اور تو اسے یہاں کیوں لایا ہے؟ رومان کے لہجے میں بہت نرمی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تیمور سے وہاں پر موجود کوئی بھی شخص پنگا نہیں افورڈ کر سکتا، کیونکہ وہ سب میں سے قابل اور سینئر تھا. اتنی کم عمر کے باوجود اس کا گریڈ وہاں موجود سبھی لوگوں سے زیادہ تھا، جنہیں 20 سال بھی ہو چکے تھے اس فیلڈ میں، جبکہ تیمور نے آتے ہی 5 سال کے اندر اپنا نام بنا لیا تھا. یہ لڑکی بھی دشمنوں سے ملی ہوئی ہے، ہمیں اس سے ہو سکتا ہے کوئی خبر مل جائے، اسی لیے. یہ بات تیمور نے نگاہیں چرا کر کہی، کیونکہ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا اس نے اپنے ساتھیوں کو جھوٹ بولا ہو، مگر پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کی وجہ سے بولنا پڑ رہا تھا. تیمور کی بات سن کر رومان نے گہرا سانس لیا اور پھر سابقہ لہجے میں بولا، تو اسے اپنے سیل میں لے کر چلنا تھا، وہاں جہاں ہم ہر اس شخص سے تفتیش کرتے ہیں جس پر ہمیں شک ہوتا ہے. یہ بلڈنگ سیکرٹ ہے، کوئی نہیں جانتا اس کے متعلق. اگر یہاں سے باہر نکل کر اس لڑکی نے ہماری مخبری کر دی تو پھر جانتے ہو نا یہاں پر کتنے بڑے راز پڑے ہیں ہمارے. تیمور نے اس بات میں سر ہلایا اور سنجیدگی سے بولا، ہاں سب کچھ جانتا ہوں، بے فکر رہو، نہیں ہوتا کچھ بھی، میں سنبھال لوں گا. آج تک بھی تو ہر شے سنبھالتا آیا ہوں. آخر میں تیمور نے ابرو اٹھا کر اپنی اہمیت کا اندازہ کروایا تو وہ کندھے اچکا کر پیچھے ہٹ گیا. ظاہر تھا نہ وہ تیمور سے بحث کر سکتا تھا اور نہ ہی اس بحث کو جیت سکتا تھا، تو بہتر تھا خاموشی سے وہ ہونے دیتا جو ہو رہا تھا. ویسے بھی اس کیس کا انچارج تیمور ہی تھا، تو وہ جو بھی بات ہوتی اسے ہی بھگتنی پڑتی تھی، اس پر تو کوئی الزام نہیں آنے والا تھا. تبھی رومان پرسکون ہو کر واپس سے ایک فائل کھول کر پڑھنے لگا. باقی چاروں بھی اپنے اپنے کام میں مگن ہو گئے. وہ کل 7 لوگ تھے، ایک تیمور، دوسرا رومان، اس کا اسسٹنٹ اور باقی 4 لوگ. 7واں ان میں ایک ٹین ایجر لڑکا تھا جو کہ چائے پانی کا انتظام کرنے کے لیے وہاں پر رکھا گیا تھا. جس عمارت میں وہ لوگ رہ رہے تھے وہ انتہائی خستہ تھی. ایسا لگتا تھا کہ ایک ہوا کا شدید جھونکا آیا تو یہ عمارت زمین بوس ہونے میں 1 سیکنڈ نہیں لگائے گی. اوپر سے اس بلڈنگ کے متعلق عجیب و غریب خبریں گردش کر رہی تھیں کہ وہاں پر بھوت رہتے ہیں. آدھی رات کو وہاں بجلی نہ ہونے کے باوجود کبھی لائٹ چلی جاتی ہے تو کبھی مشینوں کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے. صرف اتنا ہی نہیں، وہاں پر سے کھانا بننے کی مہک بھی سڑک تک آتی ہے. اس سب میں لوگوں کا قصور نہیں تھا، بلکہ یہ وہی بھوت تھے جنہوں نے اپنے خلاف یہ باتیں خود مشہور کی تھیں. تیمور کو اپنی انویسٹیگیشن کے لیے ایک محفوظ جگہ چاہیے تھی، اور اس عمارت سے بہتر جگہ اسے کوئی نہیں لگی، کیونکہ اس میں بیسمنٹ بھی تھی اور کوئی بھی وہاں آ جاتا تو اندازہ نہ کر پاتا کہ اس عمارت کی بیسمنٹ میں کتنے راز چھپے ہوئے ہیں اور کون سے لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں. ان کا پورا سیٹ اپ ہی بیسمنٹ میں تھا. اوپر سے عمارت کے اندر جاؤ تو وہی مٹی اور خستہ حالی دکھائی دیتی تھی. لوگ پہلے ہی اس عمارت کے متعلق وسوسوں کا شکار تھے، تو تیمور نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید جھوٹی خبریں پھیلا دی. پہلے کبھی کبھار جو نشئی وہاں آ کر ایک آدھ نشہ کر لیتے تھے، اب تو وہ بھی ڈر کر دور دور تک نہیں بھٹکتے تھے. اور اس لحاظ سے سکون تھا، جن لوگوں کو وہ اٹھا کر لاتے ان کی تفتیش کے لیے بھی ایک ایسی ہی عمارت انہوں نے ڈھونڈ رکھی تھی جہاں بیسمنٹ میں کوٹھڑیاں بھی تھیں، مگر وہ اس سے الگ تھی، کیونکہ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ایک غلطی کی وجہ سے سارا کام تہس نہس ہو جائے. سو اس عمارت کے متعلق کوئی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ ان کے اعلیٰ افسران بھی نہیں، کیونکہ یہ ان کی سیکرٹ پلیس تھی. قریب ہی پڑے بینچ پر تیمور نے منہا کو لٹا دیا تھا اور خود
छोटू को बोलकर चाय पीने लगा। बाकी सब लोग भी कुछ लम्हे की दिलचस्पी दिखाने के बाद अपने अपने काम में मगन हो गए। तैमूर खामोशी से कोने में बैठा चाय के घूंट भरता हुआ मुसलसल मिन्हा को देख रहा था। जाने क्या था इस लड़की में जो अचानक वो उसे यहाँ पर उठा लाया था। कुछ तो खास था। तैमूर ने हमेशा जो भी कदम सोचे समझे बगैर उठाया था उसका मायने आगे जाकर उसकी ज़िंदगी में ज़रूर बना था। फिर इस लड़की को यहाँ उठाने का भी कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। हाँ, ये बात अलग थी कि अभी वो उस वक्त से बाखबर नहीं था। चाय पीने के बाद उसने कप वापस रख दिया और अपने टेबल के दराज से एक इंजेक्शन उठाकर भरने लगा। रोमा ने पहले तो उसे मना करना चाहा, लेकिन फिर कंधे उचका कर रह गया, क्योंकि वो जानता था कि उसने तैमूर को रोकने की कोशिश भी की तो वो उसकी बात नहीं सुनेगा। वो हमेशा अपनी ही मर्जी करता था। इंजेक्शन भरने के बाद वो मिन्हा के करीब आया और बड़े सुकून से वो इंजेक्शन उसकी बाजू में लगा दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद वो दोबारा से अपने काम में मगन हो गया, लेकिन थोड़े थोड़े वक्फे के बाद एक निगाह मिन्हा पर डालना नहीं भूलता था। हालांकि ये बात भी वो अच्छी तरह से जानता था कि जो इंजेक्शन उसने लगाया है वो मिन्हा को मज़ीद 8 घंटे की बेहोशी में रखने वाला था। लेकिन फिर भी न जाने क्यों तैमूर को अजीबो गरीब बेचैनी हो रही थी, जिसे वो कोई भी नाम देने से कासिर था। तैमूर का ये मिशन बेहद अहम था। वो गलती से भी कोई गलती अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि इस मर्तबा उन्होंने एक बहुत बड़े स्मगलर को पकड़ना था जो हमेशा पुलिस और सीक्रेट एजेंसी को चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाता था। पूरी फोर्स उससे बहुत ज़्यादा तंग थी। कई मर्तबा उसे पकड़ने के प्लान्स बनाए गए, लेकिन हमेशा उससे उन तमाम प्लान्स के मुतालिक इल्म हो जाता। तैमूर अपना मुकम्मल होमवर्क करने के बाद ही मैदान में आया था। अपना पुराना मिशन मुकम्मल करने के बाद जब नए मिशन की बारी आई तो तैमूर ने जानकर ईसा खटक का मिशन अपने लिए लिया। उसके सीनियर्स ने भी मना किया था कि तुम ये मिशन मत लो, ये तुम्हारे कैरियर पर असरअंदाज होगा। अगर तुम इसे हल करने में नाकाम रहे तो तुम पहले कम उम्र नौजवान हो जिसे इतना बड़ा ग्रेड और अथॉरिटी मिल गई। जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। वहाँ पर हर जी नफ्स तैमूर को समझाने वाला था, लेकिन वो किसी की बात समझता तब ना। अगर किसी ने एक मर्तबा इनकार कर दिया तो वो 10 मर्तबा उस काम को करने का इरादा दिल में कर लेता था। यहाँ पर तो पूरी फोर्स ही उसे ये मिशन लेने से मना कर रही थी, लेकिन वो जानता था अगर वो ये मिशन हल कर लेगा तो उसके लिए कितनी बड़ी कामयाबी होगी, और बड़ी कामयाबियाँ हमेशा बड़ी कुर्बानियाँ ही मांगती हैं। सबके रोकने के बावजूद उसने वो मिशन अपने नाम साइन कर लिया। अब बस मुकम्मल तैयारी और प्लान्स के बाद मैदान में कूदने का वक्त आ चुका था। ईसा खटक के ख़ानदान के मुतालिक अब तक कोई बात भी उसे पता ना चल पाई थी, सिवाय इसके कि वो अकेला रहता है और उसका कोई ख़ानदान भी है, लेकिन उसने अभी तक अपने ख़ानदान को छुपा कर रखा है। न जाने कैसे, मगर अभी तक उसका ख़ानदान छुपा हुआ है। ये शायद दुनिया के सामने अपनी शनाख्त जाहिर किए बगैर रह रहा था। ये बात तैमूर के लिए काफ़ी हैरान कुन थी, क्योंकि आज तक जितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले इंसान थे उन सब के ख़ानदान की कोई ना कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री आज तक ज़रूर मिली थी। लेकिन ईसा खटक था केस वाहिद ऐसा केस जहाँ पर उसका ख़ानदान कौन है, कितने लोग हैं और कहाँ रहते हैं, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन माजी के मुतालिक नहीं मिल पाई थी। ये बात काफ़ी चौंका देने वाली थी, और यही वो वजह थी जिसकी बुनियाद पर तैमूर ने ये केस इतने इनकार के बावजूद अपने नाम कर लिया था, क्योंकि उसने पहेलियाँ खोजना शुरू से ही पसंद थी। तकरीबन 1 माह की मुकम्मल तैयारी और प्लानिंग के बाद वो लोग बिलाखिर ईसा खटक को पकड़ने के लिए मैदान में कूद पड़े। इन 7 लोगों के अलग अलग किरदार थे, ये जो अपने कामों के मुताबिक वो लोग परफॉर्म कर रहे थे। हत्ता के छोटों का भी इन सब में बहुत बड़ा किरदार था। दिन के वक्त वो ईसा खटक के घर के करीब मौजूद होटल पर चायगिरी का काम करता, और रात को इनके लिए तैमूर ने कोई भी बंदा अपनी टीम में बेकार या नाकारा नहीं रखा था। कोई हैकर था तो कोई सिक्योरिटी ऑफिसर, कोई फैशन डिज़ाइनर था तो कोई आम लोकल डीलर, और इन सब की मेन स्ट्रेटजी बनाने वाला दिमाग तैमूर का था। वो जुमे वाला दिन था जब वो एक फ़कीर का हुलिया अपनाकर पूरा गेटअप में आ गया। छोटू उसे पहले ही आगाह कर चुका था
کہ عیسیٰ خٹک جمعے کی نماز فلاں مسجد میں پڑھنے جائے گا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے باہر نکلے گا تو تیمور اسے بھیک مانگنے لگ جائے گا، اور یہ تبھی بھیک مانگنے کے دوران اس کی باڈی پر ایک ایسا کیمیکل لگا دے گا جو اسے مدہوش کر دے گا۔ اس کے بعد رومان کا کردار تھا جو دور پچھلے چوک میں ایمبولینس لے کر کھڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی عیسیٰ خٹک بے ہوش ہوتا تو وہ اسے ریسکیو کرنے کے لیے وہاں پہنچ جاتا۔ بس پھر یہاں سے وہ کسی نہ کسی طرح عیسیٰ خٹک کو نکال کر اپنے مقام پر لے جاتے۔ پھر اس سے تفتیش کے بعد تمام وہ والی جانکاری نکال لی جاتی جو نہ جانے کتنے سالوں سے وہ اندر چھپائے بیٹھا تھا۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی جمعے کی نماز کے وقت لوگ باہر نکلنا شروع ہوئے اور تیمور کو عیسیٰ خٹک کے قریب جانا تھا، تبھی نہ جانے رش میں کہاں سے وہ لڑکی اس کے سامنے آ گئی۔ وہ تقریباً 17 سال کی تھی اور دکھنے میں بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس سے پہلے کہ تیمور اسے نظر انداز کر کے وہاں سے چلا جاتا، وہ لڑکی اس کے سامنے رک گئی اور اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا کھانے والا ڈبہ تیمور کو تھمانے لگی۔ تیمور نے وہ ڈبہ ایک دم سے جھٹکنا چاہا، لیکن وہ لڑکی حیرت سے ڈبہ واپس اس کے ہاتھ میں تھماتے بولی، کھا لو، یہ جھوٹا نہیں ہے، میں نے پلیٹ میں نکال کر کھایا تھا، میرا دل نہیں چاہ رہا، تو تمہیں بھی شاید بھوک لگی ہو۔ ایک تو لوگوں کا رش وہاں پر بہت زیادہ تھا، اور اوپر سے وہ لڑکی اسے راستے میں روک کر کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں کھانا مجھے، تم ایک دفعہ میری بات سمجھ نہیں آ رہی، پیچھے ہٹ جاؤ یہاں سے۔ اب کی مرتبہ تیمور انتہائی غصے سے بولا، جس پر لڑکی کے ماتھے پر ایک دم سے بل پڑ گئے۔ یہ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہو؟ ایک تو میں تمہیں کھانا دے رہی ہوں، اوپر سے تم مجھے ہی ڈانٹ رہے ہو۔ لڑکی اب اپنی کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر واقعی اس سے لڑنے والے انداز میں بات کر رہی تھی، جس پر تیمور کو مزید کوفت ہوئی۔ محترمہ پیچھے ہو جائیں یہاں سے، یہ کہہ کر تیمور نے بازو سے پکڑ کر اسے ایک جانب کیا اور خود عیسیٰ خٹک کی تلاش میں آگے بڑھ گیا۔ وہ لڑکی ایک دم سے اونچی اونچی چیخنے لگی کہ اس فقیر نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ ایک لڑکی کی اتنی بھیڑ میں آواز سن کر وہاں موجود سبھی لوگ ایک دم سے رک گئے اور ارد گرد نگاہیں چرا کر دیکھنے لگے کہ آیا کون سا فقیر ہے جو اتنے لوگوں کی بھیڑ کے باوجود ایک لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تیمور بات سن چکا تھا، لیکن تب تک عیسیٰ خٹک بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا تھا، تو مزید وہاں پر کھڑے رہنے کا جواز نہیں بنتا تھا۔ اگر ایک لمحہ بھی مزید وہ وہاں پر کھڑا ہو جاتا تو وہ لوگوں کی بھیڑ اس پر پل پڑتی اور بہت مشکل تھا کہ وہ ان لوگوں کے چنگل سے نکل کر بھاگ سکے۔ اس سے پہلے کہ تمام لوگ اس کی جانب متوجہ ہوتے اور بھیڑ میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتے، وہ فوراً سے مسجد کے پیچھے والی گلی میں جا کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ بچ تو وہ گیا تھا اور کوئی زیادہ نقصان بھی نہیں ہوا تھا، لیکن شرمندگی اور غصے کی شدت سے تیمور کا چہرہ دہک رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ شکار اس کے ہاتھوں میں آ کر اڑ چکا تھا۔ شاید ہی وہ کبھی اپنے آپ کو اس معاملے کے لیے معاف کر پائے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس لڑکی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر وہ درمیان میں آ کر اسے نہ ٹوکتی تو وہ ضرور عیسیٰ خٹک تک پہنچ جاتا، اور وہ مشن جو پچھلے 1.5 ماہ سے وہ لوگ پلان کر رہے تھے وہ آج کامیاب ہو سکتا تھا۔ لیکن اس ٹین ایجر لڑکی نے آ کر سارا کچھ تباہ کر دیا تھا۔ تیمور نے غصے سے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ تبھی رومان وہاں پر ایک ایمبولینس لے آیا اور اسے گاڑی کے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چند لمحے تو تیمور شرمندگی سے اسے دیکھتا رہا، تو رومان کندھے اچکا کر بولا، بیٹھ جا یار، کچھ نہیں ہوتا، ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے رہے ہیں، اب نہیں تو پھر کبھی آخر وہ شکار ہم سے بچ کر جائے گی کہاں پر؟ جگہ جگہ پر تو ہم اس کی طاق میں بیٹھے ہیں، چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ رومان اور وہ اچھے دوست بھی تھے، تبھی رومان نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا۔ اس کے باوجود تیمور مسلسل اپنے بال نوچ رہا تھا۔ وہ ایسا ہی کرتا تھا، جب بھی پریشانی میں ہوتا تو اپنے بالوں کو تکلیف پہنچانے لگتا۔ رومان، مظاہر سے کہو مجھے جلد از جلد اس لڑکی کے متعلق تمام انفارمیشن چاہیے۔ جہاں پر ہم موجود تھے وہاں پر 5-6 CCTV کیمراز بھی تھے، تو ان سے لڑکی کی فیس ریکگنیشن کے بعد مجھے اس کا ایڈریس دو۔ اس لڑکی کو میں کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تیمور، جانے بھی دی یار، کچھ نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے کبھی کبھار اتفاقاً۔ تیمور خاموش رہا
अभी उसका दिमाग बुरी तरह से सुलग रहा था। वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि वो जानता था अगर वो एक मर्तबा बोलना शुरू हुआ तो अपने गुस्से की तमाम भड़ास यहीं गाड़ी में निकाल देगा। सिगरेट पकड़ यार। अगला हुक्म आया तो तैमूर ने फ़ौरन ही करीबी खोखे के पास एम्बुलेंस रोक दी और वहाँ से उतरकर 2 डिब्बियाँ सिगरेट के ले आया, क्योंकि वो जानता था तैमूर अब ये 2 डिब्बियाँ सिगरेट की ख़त्म करने के बाद ही कुछ पुरसकून हो पाएगा। पहली सिगरेट का कश लगाते ही तैमूर ने धुआं छोड़ा और बाहर देखने लगा, जिस पर रोमान ने एकदम से अपने कंधे ढीले छोड़ दिए, क्योंकि अब जब तक वो सिगरेट ख़त्म नहीं होने वाली थी तैमूर किसी से भी बात करने वाला नहीं था, और शायद ये उनके हक़ में अच्छा था। लेकिन अंदर ही अंदर ईसा खटक के भाग जाने पर उसे बेइंतहा दुख था। बहुत तैयारी की थी उन सब ने मिलकर, उन कैमरास में जैमर भी लगा दिए थे ताकि जैसे ही तैमूर ईसा खटक के करीब जाता तो वो इर्द गिर्द वाले तमाम कैमरास को जाम कर देते, लेकिन फिर भी नाकाम रहे। वो अपने सीक्रेट मुकाम पर पहुंच चुके थे, लेकिन तैमूर ने किसी से भी बात नहीं की थी। रोमान ने खुद ही अपने तौर पर उन्हें मुतमईन कर लिया था। वो खामोशी से अपने कमरे में चला गया, बाकी भी अपने अपने आराम और काम में मगन हो गए। किसी को भी इल्म नहीं हुआ कि तैमूर की इस वक्त बेसमेंट से निकला और जाकर मिन्हा के घर पहुंच गया, क्योंकि सिकंदर ने तमाम मालूमात तैमूर के नंबर पर भेज दी थी, जिनकी मदद से वो मिन्हा के कमरे में पहुंच गया तो देखा वो सो रही थी। उस वक्त तकरीबन रात का 1:30 बज रहा था, लेकिन तैमूर की आंखें मुकम्मल तौर पर जागी हुई थी। वो दिन को सोते थे जबकि रात को काम करते थे। तभी रात का अंधेरा उससे कुछ नहीं कह रहा था। वो खामोशी से छलांग लगाकर मिन्हा के कमरे में दाखिल हो गया और बेआवाज़ कदमों से उसके कमरे में चलता हुआ एक एक शय को बड़े गौर से देखने लगा। उसकी चाल इतनी बेआवाज़ थी कि मिन्हा, जो फ़ौरन ही थोड़े से शोर पर आंखें खोल देती थी, उसे भी इल्म नहीं हुआ कि इस वक्त उसके कमरे में वो अकेली नहीं बल्कि कोई और भी मौजूद है जो उसकी ताक में वहाँ पर आया हुआ है। हर शय को बड़े गौर से देखने के बाद पहले तो उसने मिन्हा का मोबाइल उठाकर बंद किया और अपनी जेब में रखा, फिर अपनी जेब से एक रुमाल निकाल कर बग़ैर किसी शोर के मिन्हा के मुंह पर रख दिया, और वो जो गहरी नींद में थी वैसे ही बेहोशी में चली गई, ये जाने बगैर कि उसे कौन बेहोश कर रहा है और बेहोश होने के बाद वो कहाँ पर जाने वाली है या उसके साथ क्या होने वाला है। वो हर बात से बेखबर थी। तैमूर ये सब कुछ बड़े आम से अंदाज में कर रहा था, गोया ये काम उसके लिए बेहद मामूली हो। मिन्हा को बेहोश करने के बाद उसे उस बैग में डाला और वो बैग अपने कंधों पर लाद कर बड़े सुकून से खिड़की से बाहर निकल गया। इतने वज़न के साथ चलना नॉर्मल आदमियों के लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन इस फील्ड में आने से पहले वो एक कामयाब एथलीट और वेट लिफ्टर भी था, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। खिड़की से नीचे ही वहाँ पर उसका डाला खड़ा था, जिसमें मिन्हा को लिटाकर वो नॉर्मल स्पीड के साथ चलता हुआ ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। वहाँ जाकर उसे एहसास हुआ कि जज्बात में आकर मिन्हा को वो उठा तो लाया है, लेकिन अब उसे ले जाना कहाँ पर है। उसने कुछ भी नहीं सोचा था, बल्कि एड्रेस भी इसीलिए मांगा था ताकि वो खुद उस लड़की के रूबरू होकर उसे तफ्तीश करे और फिर वहाँ से आ जाए। लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट हो चुका था, क्योंकि उस तफ्तीश करने की बजाय तैमूर मिन्हा को अपने कंधों पर लाद कर अपने साथ ही ले आया था। अपने कैरियर में ये उसकी पहली गलती थी, वरना वो हमेशा हर काम और हर कदम सोच समझ कर उठाया करता था। हर काम के 2-3 प्लान्स भी उसके पास तैयार होते थे, लेकिन ये वो वाहिद काम था जिसके मुतल्लिक उसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी। गाड़ी तो चल पड़ी थी, लेकिन वो अभी तक कश्मकश में था। आया क्या लड़की को वहीं बेड पर लेटा दिया जाए या फिर उससे अपने साथ लेकर जाए। लेकिन अब चूंकि उसे लेकर आ चुका था तो हार मानना या पीछे मुड़ना तैमूर की फहरिस्त में दूर दूर तक कहीं नहीं था। बिलाखिर अल्लाह का नाम लेकर वो मिन्हा को अपने सीक्रेट बेसमेंट में ले आया, जहाँ सभी बहुत हैरान हुए थे, क्योंकि आज तक उन 7 लोगों के अलावा 8वां कोई भी वहाँ नहीं आया था।
लेकिन अब मिन्हा थी जो उनमें 8वां किरदार बन चुकी थी। अभी चाय की चुस्कियां लेते हुए मुसलसल वो मिन्हा को देखते सोच रहा था कि उसे आगे क्या करना है। रोमान धीरे से उसके करीब आया और कंधे पर हाथ रखकर बोला, तैमूर यार, बुरा मत मनाना, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें इस लड़की से ज़्यादा अपने नेक्स्ट प्लान पर काम करना चाहिए। तैमूर ने नरमी से इस बात में सर हिला दिया, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि वो एक अनजानी लड़की में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। खैर, वो अपने आम रूटीन के कामों में मगन हो गया। तकरीबन 8 घंटे बाद जब मिन्हा को दोबारा से होश आया तो देखा वो एक बहुत ही अजीब जगह पर थी। यूँ लग रहा था ये कोई खंडर है। एक लम्हे के लिए तो मिन्हा को यही लगा कि वो मर चुकी है, लेकिन फिर उसकी नज़र रोमान और इर्द गिर्द काम करते लड़कों पर पड़ी तो उसे यकीन हो गया कि अभी वो मरी नहीं बल्कि सांसें ले रही है। एक्सक्यूज़ मी, कहाँ हूँ मैं? ये कौन सी जगह है और आप लोग कौन हैं? उसने जावियार को मुखातिब करके कहा तो रोमान एक लम्हे के लिए रुक गया, फिर उसके करीब गया और संजीदगी से बोला, मैडम, आपको कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, बस आपको मामूल की तफ्तीश के लिए यहाँ लाया गया है, जिसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, सो घबराएं मत। ये बात सुनकर मिन्हा के चेहरे के तासुरात एकदम से बदल गए। उसने बिल्कुल भी यकीन नहीं किया था कि वो किसी भी तफ्तीश का हिस्सा अपनी ज़िंदगी में बन सकती है, और जो लोग उससे बात कर रहे थे वो भी बेहद आम से कपड़ों में थे, कोई भी वर्दी में नहीं था। फिर कौन सी तफ्तीश? ऊपर से एक परेशानी ये भी थी कि वहाँ पर उसने अपने अलावा और कोई लड़की देखी नहीं थी। कहाँ हूँ मैं? मुझे जगह बताओ। मिन्हा एकदम से धाड़ी। उसका दिमाग बुरी तरह से घूम रहा था। उसे आखिरी मर्तबा जो सीन याद था वो ये था कि वो अपने कमरे में सो रही थी, तो फिर कमरे से उसे कौन यहाँ तक लाया, और अगर ले भी आया तो क्या उसके वालिदैन को इल्म नहीं हुआ? कितनी देर हो गई है मुझे यहाँ पर? क्या मेरे वालिदैन को बुलाया किसी ने? मेरे वालिदैन से मिलवाओ मुझे। वो एकदम से पागल हो रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या बात कर रही है और क्या नहीं। रोमान खामोशी से सीने पर हाथ बांधे उसकी बात सुन रहा था, गोया उस पर रत्ती बराबर भी फर्क ना पड़ रहा हो, और वैसे भी ये सब कुछ उसके लिए बेहद मामूल का काम था। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मुझे मेरे वालिदैन के पास जाना है। कहाँ है मेरे वालिदैन? तुम्हारे वालिदैन नहीं जानते कि तुम यहाँ पर हो, लिहाजा आप खामोशी से बैठ जाओ, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं देने वाला, और अगर तुमने मुझे मज़ीद तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बांध दूंगा। रोमान ने इंतहाई संजीदगी से कहा तो वो एकदम से घबरा गई और बेड से नीचे उतरने की कोशिश की। इससे पहले कि बेड से नीचे उतरकर वो रोमान पर झपटती, पीछे से किसी ने उसकी कलाई से थामा और दोनों हाथों की कलाइयाँ थामकर उनमें एक हथकड़ी लगा दी। मिन्हा ने अभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। उसके लिए ये सारी सिचुएशन बेहद मुश्किल थी और अनजानी भी। अचानक से अपने हाथों पर लगी हथकड़ी को महसूस करते हुए मिन्हा ने रुख मोड़ कर देखा तो उसके सामने तैमूर खड़ा था। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे बांधने की? क्योंकि तुम सुकून से नहीं बैठ सकती। अगर आराम से बैठकर बात करती तो यकीनन मुझे बांधने की नौबत ना आती। और दूसरी बात, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कुलीग पर झपटने की? एक्सक्यूज़ मी, मैंने किसी पर कोई हमला नहीं किया, और तुम लोग मेरे साथ ये सब कुछ करोगे और फिर उम्मीद रखते हो कि मैं खामोशी से बैठूंगी? हम कोई शिमला कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। समझ आ रही है तुम्हें मेरी बात? मिन्हा पूरी ताकत से हलक के बल चिल्लाते हुए बोली तो तैमूर ने कोई भी रद्द अमल नहीं दिया। बिल्कुल रोमान की तरह उसके सामने सीने पर हाथ बांधे खड़ा हो गया। हमला बेशक नहीं किया, लेकिन इरादा तुम्हारा पूरा था। खैर, अब खामोशी से यहाँ पर बैठ जाओ। तुम्हें सिर्फ इतनी ही इजाज़त है जितनी इस हथकड़ी के साथ लगी हुई जंजीर ने तुम्हें दी है। ये कहते हुए तैमूर ने हथकड़ी के साथ लड़की को लंबी सी जंजीर के साथ बांध दिया। वाकई में वो बिल्कुल इतनी अनजान बन रही थी कि मिन्हा बेड से उतरकर इर्द गिर्द सिर्फ एक चक्कर लगा सकती थी। 1 फुट से ज़्यादा
बेड को छोड़कर आगे नहीं आ सकती थी। मैं कह रही हूँ मुझे खोलो। ये जुमला कहते हुए उसका गला एकदम से रुंध गया, क्योंकि वाकई में जो भी हो रहा था बिल्कुल उसकी उम्मीदों के बरक्स था। खामोशी से बैठ जाओ, छोटू पानी लेकर आओ। मिन्हा को कहते हुए उसने साथ ही छोटू को बुलाया, जो भागकर मिनरल वाटर की बोतल ले आया। तैमूर ने बोतल खोलकर खुद ही मीना के मुंह के साथ लगा दी, जिस पर वो घूंट घूंट पानी पीने लगी। फिर खामोशी से वापस जाकर बेड पर बैठ गई और लंबे गहरे सांस लेने लगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे थे उसे दोबारा से पुरसकून होने में। इतना वक्त लेने के बाद उसने दोबारा से इर्द गिर्द का जायज़ा लिया, तो अब वहाँ कोई भी मौजूद शख्स उसकी जानिब मुतवज्जो नहीं था। तैमूर भी दूर बैठा अपना मोबाइल में मगन था। कौन थे ये लोग और इसके साथ क्या करना चाहते थे? ये बात मुसलसल उसके दिमाग को झंझोड़ रही थी। मिस्टर, कौन हो तुम लोग? मुझे साफ साफ बताओ, और यहाँ पर लाने का मकसद क्या है मुझे? तैमूर ने अपना मोबाइल मेज़ पर रख दिया और मुकम्मल तौर पर मिन्हा की जानिब मुतवज्जो होकर संजीदगी से बोला, हम लोग सीक्रेट एजेंट्स हैं। सुना तो होगा तुमने, सुना नहीं होगा तो किसी फेसबुक के बोल्ड नॉवल में ज़रूर हमारा जिक्र पढ़ लिया होगा। इस बात पर पूरे हॉल में एक शदीद कहकहा गूंजा, जिस पर मिन्हा सटपटा कर रह गई, क्योंकि वाकई में उसे सीक्रेट एजेंट वाले बोल्ड नॉवेल्स पढ़ने का बेहद शौक़ था और तकरीबन हर रोज़ ही वो कोई ना कोई नावल पढ़ती रहती थी। बहुत शौक़ था उसे सीक्रेट एजेंट से मिलने का, लेकिन अब जब उसका शौक़ हकीकत के साथ मिला था, ये एक नहीं बल्कि 7 सिक्योरिटी एजेंट्स उसके सामने खड़े थे, तो उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई, क्योंकि यह तजर्बा बिल्कुल भी खुशगवार नहीं था, बल्कि बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। नावलों में ये तो बात बड़ी रोमांटिक लगती है कि एक सीक्रेट एजेंट ने लड़की को उठा लिया, लेकिन जब हकीकत ये मंज़र आप अपनी जान पर महसूस करते हैं तो आपको इल्म होता है कि ये रोमांटिक बिल्कुल भी नहीं, बल्कि किसी भयानक ख्वाब की मानद है, जहाँ पर आपको ये नहीं पता कि आपके वालिदैन पर क्या बीत रही होगी और आगे आप पर क्या तशद्दुद होंगे, या फिर आप उस तमाम सिचुएशन से बचकर वापस जाने के काबिल होंगे भी या नहीं। मिन्हा, जो काफ़ी देर से बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी, एकदम से रोने लगी। उसकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी थी। मज़ीद वो ख़ुद को बहादुर साबित नहीं कर सकती थी। लड़की, तुम्हें रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तुमसे बस कुछ सवाल जवाब करने हैं, उनका ठीक तरह से जवाब दो और फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। तैमूर के कुछ कहने से पहले ही रोमान ने संजीदगी से कहा, तो तैमूर ने एक निगाह उस पर डाली, लेकिन कोई भी रद्द अमल नहीं दिया। पूछो जो कुछ पूछना है, मैं सब कुछ सच सच बताऊंगी। ईसा खटक के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तैमूर की रोबदार आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। कौन ईसा खटक? मैं नहीं जानती किसी भी ईसा खटक को, मिन्हा ने रोते हुए कहा, तो तैमूर तीखी निगाह उस पर डालते हुए बोला, अगर तुम उसे नहीं जानती तो उसे बचाने की कोशिश क्यों की थी? मैंने किसे बचाने की कोशिश की? मैं किसी को भी नहीं जानती। आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। हो सकता है आप लोगों ने किसी और लड़की को उठाना हो और गलती से मुझे उठा लिया हो। रोते रोते वो एकदम से रुक गई और अपने लिए आवाज़ उठाने लगी, तो तैमूर नफ़ी में सर हिलाकर बोला, उस दिन जैसे ही ईसा खटक मस्जिद से बाहर आया तो तुम मेरे पास खाना लेकर आ गई थी। हालांकि मैंने तुम्हें बहुत मर्तबा इनकार भी किया था, मगर तुम तब तक वहाँ से नहीं हिली जब तक वो गाड़ी में नहीं बैठ गया। ये जुमला कहते ही वो खामोश हो गया, लेकिन मिन्हा का पूरा मुंह खुल चुका था और वो मर कर भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकती थी कि तैमूर उसके सामने बैठा हुआ वही फ़कीर था जिसे वो अपना झूठा खाना दे रही थी। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो कि तुम उस दिन वाले फ़कीर हो? क्या तुम्हारा और मेरा मजाक का कोई रिश्ता है? तैमूर ने तीखे लहजे में कहा, तो मिन्हा एकदम से खामोश हो गई। वाकई में वो उसके साथ मजाक क्यों करेगा, और वो बात जो सिर्फ मिन्हा या वो फ़कीर जानता था वो क्यों दोहराएगा?
اب کی مرتبہ منہا نے تیمور کی آواز اور لہجے پر غور کیا تو واقعی اس کی آواز اور لہجہ فقیر سے کافی حد تک مشابہت کھا رہا تھا۔ میں نہیں جانتی کون ہے وہ، جو ہوا اتفاقاً ہوا۔ جب تک ہمیں یقین نہیں آ جاتا کہ تمہارا عیسیٰ خٹک کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، تب تک تم یہیں پر رہو گی۔ سمجھ آ رہی ہے تمہیں میری بات؟ منہا ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس مزید کچھ بھی کہنے کے لیے نہیں بچا تھا۔ وہ جو بھی کہتی وہ اس کے خلاف ہی استعمال ہوتا تھا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ بغیر کوئی جملہ کہے منہا نے سنجیدگی سے کہا تو تیمور نے اپنا لیپ ٹاپ آن کر لیا اور سپاٹ لہجے میں بولا، لڑکی مجھے خاموشی میں کام کرنے کی عادت ہے اور امید کرتا ہوں مجھے یہ جملہ بار بار تمہیں یاد نہیں کروانا پڑے گا۔ وہ خاموش ہو گئی اور باقی سب لوگ بھی اپنے کاموں میں مگن ہو چکے تھے۔ تقریباً 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ منہا کی بری حالت تھی، اسے اپنے والدین کے پاس واپس جانا تھا، لیکن ان 7 لوگوں نے اسے بری طرح سے وہاں پر قید کر کے رکھا تھا۔ ہاں، کھانا پینا وقت پر مل رہا تھا، لیکن پورا دن وہ فارغ بیٹھتی، ان کی باتیں سنتی رہتی۔ کوئی بھی اس سے زیادہ مخاطب نہیں ہوتا تھا۔ تیمور تو پہلے دن سے لے کر اب تک یوں ہو چکا تھا گویا اس کا منہا کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ جب 4 دن مزید گزرے تو منہا نے روتے ہوئے تیمور کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، میں کچھ نہیں جانتی، تم لوگوں کو میری کوئی مدد چاہیے تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے یہاں سے جانے دو، میں یہاں پر گھٹ گھٹ کر مرنا نہیں چاہتی۔ تو ٹھیک ہے، ہماری مدد کرو اور عیسیٰ خٹک کو پکڑوانے کی کوشش کرو۔ اگر تم اس میں کامیاب ہو گئی تو پھر تمہاری آزادی یقینی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر اگلے پروجیکٹ تک ویٹ کرو تاکہ تمہیں دوبارہ پھر سے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا موقع ملے۔ اس دن تیمور چائے پی رہا تھا جب وہ اسے پکارتے ہوئے اونچی آواز میں بولی۔ باقی سب لوگ بھی اپنا کام روک کر ان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ رومان نے تیمور کو منع کرنا چاہا تو تیمور نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا کہ ہم دونوں کے معاملے میں مت بولو، مجھے جو ٹھیک لگے گا میں وہی کروں گا، کیونکہ اس مشن کا لیڈر میں ہوں، رومان تم نہیں۔ رومان کو یہ بات بہت محسوس ہوئی۔ باقی سب کچھ تو ٹھیک تھا، لیکن اس لڑکی کے سامنے تیمور کو اس کے ساتھ یوں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ہاں، تم جو بولو گے میں کروں گی، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے تمہیں؟ عیسیٰ خٹک ایک ہوٹل میں رکے گا اور تم اس ہوٹل میں ویٹریس بنو گی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ویٹریس بننے کے بعد تم جو پہلی ڈرنک عیسیٰ خٹک کو پیش کرو گی اس میں نشہ ملا ہوگا، جسے پینے کے بعد وہ اپنے حواسوں میں نہیں رہے گا۔ ہم لوگ بھی وہاں پر ویٹر کے حلیے میں ہی موجود ہوں گے۔ بس تمہارا کام اتنا ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ خٹک کو وہاں سے نکالنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر تم یہ کام اچھی طرح سے کر لو گی تو تمہیں آزادی مل جائے گی۔ منہا نے فوراً اس بات کے لیے حامی بھر لی کہ بے شک مجھے ابھی بھیج دو، میں ابھی یہ کام کر لوں گی۔ لیکن تیمور نے اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا، کیونکہ یہ کام انہیں 1 ہفتے بعد کرنا تھا، جب عیسیٰ خٹک اپنی بکنگ کے اکارڈنگ اس ہوٹل میں پہنچا تھا۔ مزید 1 ہفتہ اسی پلان کی تیاری میں گزر چکا تھا، جبکہ منہا کے لیے ہر ایک لمحہ بے حد مشکل تھا۔ حقیقتاً وہ ایک سیکنڈ گن کر گزار رہی تھی۔ اس رات وہ سبھی اپنے کام میں بری طرح سے مگن تھے۔ انہوں نے منہا کو بھی کھول دیا تھا اور اسے بھی مکمل طور پر اپنے پلان میں شامل کر رہے تھے۔ یوں ہی کام کرتے کرتے سب لوگ سو چکے تھے۔ تبھی اچانک سے منہا کی زوردار چیخ سنائی دی تو اس بیسمنٹ میں موجود سبھی لوگوں نے اپنے اپنے ہتھیار نکال لیے اور ایک دم سے چوکنا ہو گئے۔ تبھی ان کی نگاہ منہا پر پڑی جو کہ بہت بری طرح چیخ رہی تھی۔ تیمور نے اسے دیکھا تو اس کی ہوائیاں اڑ گئیں، کیونکہ منہا کی بازو پر چھری کا ایک وار ہوا تھا جس سے خون بری طرح سے بھل بھل نیچے بہہ رہا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے لگا تمہیں؟ تیمور کو یہ کٹ بے حد عجیب لگ رہا تھا تو منہا نے روتے ہوئے باہر کی جانب اشارہ کر دیا اور بولی، میں سو رہی تھی
तभी एक आदमी ब्लैक मास्क पहने बेसमेंट में दाखिल हुआ। इससे पहले कि मैं चीख कर आप सबको उठाने की कोशिश करती, वो छुरी से मुझ पर वार करके यहाँ से भाग गया। शायद वो इधर ही से कुछ उठा रहा था। मिन्हा की बात सुनकर तैमूर एकदम चौंक गया और मुड़कर टेबल की जानिब देखा तो वाकई में टेबल के दराज खुले हुए थे। वो पूरी तेज़ रफ्तारी से टेबल की जानिब बढ़ा तो देखा उनकी अहम डिवाइस गुम थी। जिस यूएसबी में उन्होंने अपने तमाम तर रिकॉर्ड जमा किए हुए थे वो यूएसबी गायब थी। ऐसा नहीं था कि उसे यूएसबी की कोई कॉपी मौजूद नहीं थी, बल्कि वो यूएसबी ओरिजिनल यूएसबी की कॉपी ही थी, लेकिन उसमें मौजूद मवाद जो कि कॉपी किया हुआ था बेहद ख़तरनाक था। आज तक तैमूर ने अपने जितने भी प्रोजेक्ट मुकम्मल किए थे उनमें शामिल एक एक बंदे की तफसील उसमें मौजूद थी, जिनमें पॉलिटिशियन, स्मगलर्स, दूसरे मुल्क के एजेंट्स, बहुत से लोग शामिल थे। ये देखकर तैमूर एकदम से ऊपर बाहर की जानिब भागा, लेकिन दूर दूर तक सिवाय वीरानी के उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 20 मिनट और बिल्डिंग में लगे हुए कैमरे चेक किए तो वो भी टूटे हुए थे, यानी जो कुछ भी हुआ था काफ़ी प्लानिंग के साथ हुआ था। एकदम से तैमूर आगे बढ़ा और उसने मिन्हा की गर्दन अपने हाथ में दबोच ली और चीखते हुए बोला, ये सब कुछ तुमने किया है? वो एकदम से परेशान होकर बोली, मैं कैसे कर सकती हूँ? तकरीबन 2 हफ्ते होने को आए हैं, मैंने आसमान नहीं देखा, अपने घर वालों से मेरा कोई राब्ता नहीं, और तुम कह रहे हो मैंने ये सब कुछ किया है? मिन्हा, अगर तो तुम कोई हमारे साथ मजाक कर रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा ये मजाक तुम्हें बेहद महंगा पड़ सकता है। अगर वो यूएसबी तुम्हारे पास है तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमारे हवाले कर दो। रोमान सख्त लहजे में बोला तो एकदम से रोने लगी। उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था ये काम मिन्हा का है। ऊपर से उसका ज़ख्म भी काफ़ी बुरी तरह लगा था। सिकंदर मेडिकल बॉक्स लेकर आगे बढ़ा और खामोशी से मिन्हा की पट्टी करने लगा। एकदम से पूरी फिज़ा साकित हो चुकी थी। सब एक दूसरे को शकी निगाहों से देख रहे थे। ये वक्त ऐसा था कि तैमूर को अपने ऊपर भी शक महसूस हो रहा था और वो पछता रहा था कि वो कौन सा लम्हा था जब वो मिन्हा को यहाँ पर लेकर आया था। रोमान, इसे आज ही स्पेशल सेल में भेजो, मुझे ये लड़की यहाँ पर नहीं चाहिए। इस बात पर मिन्हा चीखें मार मार कर रोने लगी और वादे और कस्में उठाने लगी कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे इसका कोई हाथ नहीं है, और वो तो जानती भी नहीं। अगर उसने ये सब कुछ किया होता तो ख़ुद को ज़ख्मी क्यों करती? वो यहाँ से यूएसबी उठाकर भाग भी तो सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। हालांकि उसके पास भागने का मौका भी था, वो आज़ाद थी। तैमूर ने उसकी बातें सुनकर अपना सर दोनों हाथों में भेंच लिया। उसे ज़मीन अपने सामने गोल गोल घूमती दिखाई दे रही थी। रोमान, तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? अभी और इसी वक्त मिन्हा को स्पेशल सेल भेजो। रोमान वहीं खड़ा रहा और संजीदगी से बोला, तैमूर, पहले तुमने जल्दबाजी में एक फ़ैसला कर लिया, लेकिन मैं नहीं चाहता ये दूसरी गलती जो तुमने पहले की थी मिन्हा को यहाँ पर लाने की तुम दोबारा से दोहराओ, क्योंकि तुम जानते हो हमारा ये वाला पॉइंट सीक्रेट कोई भी इस जगह के मुतालिक नहीं जानता। अगर मिन्हा यहाँ से बाहर गई तो हमारी तमाम तर प्राइवेसी को ख़तरा हो सकता है। रोमान की बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त थी। हथकड़ियाँ लगा कर रखो इसे, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अपना ये मिशन हर हाल में मुकम्मल करूँगा। ये कहकर तैमूर अपना सर थाम कर वापस बैठ गया। बाकी सब भी अपनी अपनी जगहों पर बैठ चुके थे। बाकी जितने भी दिन बचे थे उन दिनों में किसी ने भी मिन्हा के साथ बात नहीं की थी, बस वो खामोशी से अपनी जगह पर बैठी रहती। कई मर्तबा उसने इर्द गिर्द लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी उसकी बात को मुकम्मल नहीं सुनता था, खामोशी से चला जाता था। बिलाखिर वो दिन भी आ गया जब एक मर्तबा फिर से तैमूर ने पूरा प्लान तरतीब दे दिया, लेकिन अब की बार वो फिर से मायूस था, क्योंकि उसे यकीन था कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे मिन्हा का ही हाथ है। लेकिन फिर भी अपनी तैयारी के मुताबिक वो लोग होटल पहुंच चुके थे। पूरा प्लान तैयार था। तकरीबन दिन के 11 बजे ईसा खटक ने वहां पर आना था
और 1 बजे वो ईसा को यहाँ से लेकर फरार होने वाले थे। प्लान के मुताबिक मिन्हा को भी वेट्रेस का गेटअप करवा दिया गया। वो भी काफ़ी डरी हुई थी। तैमूर ने उसके साथ एक छोटा सा ट्रैकर और बम इंसर्ट कर दिया था। अगर वो कोई भी कदम उनके प्लान के खिलाफ लेती तो तैमूर उसे तबाह करने में एक लम्हा भी ना सोचता। बाकी भी अपनी अपनी पोजीशन पर आ चुके थे। अब सिर्फ ईसा खटक की आमद का इंतज़ार था। तैमूर काफ़ी घबराया हुआ था क्योंकि आज तक उसने इतना मुश्किल टास्क कभी नहीं किया था। देखने में ईसा का केस भी इतना मुश्किल नहीं लगता था, लेकिन हर मर्तबा उसके बचने की टेक्निक बिल्कुल मुख्तलिफ होती थी। खैर 11:20 पर ईसा खटक वहाँ पहुँच चुका था। बेटर उसे उसके रेस्ट हाउस ले गए थे। वहीं पर मिन्हा भी पहले से मौजूद थी। उसने अपने प्लान के मुताबिक ईसा खटक को ड्रिंक में नशा मिलाकर दे दिया, जिसे पीने के फ़ौरन बाद ही वो बेहोश हो चुका था। और उसके बेहोश होते ही बाकी लोग बड़ी फुर्ती से उसे वहाँ से उठाकर अपने सेल में ले आए थे। उन सब में सबसे ज़्यादा खुश रोमान था, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ईसा खटक को वो इतनी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। बार बार वो तैमूर की गले लगकर अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। मिन्हा भी उनके साथ ही वापस सेल में आ गई थी। अब आप लोगों को यकीन आ गया कि मैं आप लोगों के ही साथ हूँ और अपनी आज़ादी चाहती हूँ। तैमूर ने खामोशी से मिन्हा की जानिब देखा और निगाहें झुका गया। पता नहीं क्यों उसे मिन्हा की जानिब एक कशिश खींचती हुई महसूस होती थी। इस बात से वो खुद भी नावाकिफ था। रोमान ने मुस्कुराकर उसे देखा और संजीदगी से बोला, जो मिशन हमारा तुम्हारी वजह से ख़राब हुआ था, आज तुमने ही उसे पूरा कराने में हमारी मदद की है। हाँ तो ठीक है, मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, लेकिन अब मुझे मेरे घर जाना है। मेरे वालिदैन पर न जाने क्या बीत रही होगी। रोमान, इसे छोड़ आना। तैमूर ने इंतहाई सख्त लहजे में ये जुमला कहा और वहाँ से चला गया। वहाँ मौजूद सभी लोग एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। सबको ही महसूस हुआ था कि मिन्हा के जाने से तैमूर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। कहीं कोई बात तो नहीं हुई? रोमान ने शरारती अंदाज में मिन्हा को देखते हुए कहा। तू एकदम से खामोश हो गई और संजीदगी से बोली, मुझे मेरे घर छोड़ दो, तुम्हारी मेहरबानी। इस बात पर रोमान चुप कर गया। चलो आओ। एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर वो मिन्हा को उसके घर छोड़ आया। ईसा खटक अभी तक अपने सेल में बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया और तैमूर के साथ रोमान उससे तफ्तीश करने के लिए अंदर गए, तो उनकी हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि जो शख्स ईसा खटक के रूप में था वो कोई और था, जिसने मास्क पहन रखा था। ये देखकर तैमूर एकदम से शौक में आ गया और बुरी तरह से उस आदमी को पीटने लगा। बता साले, कहाँ है ईसा? मुसलसल ये सवाल पूछने के साथ उस आदमी को ठुड्डे मार रहा था। साईं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो एक आम सा नशई हूँ। मुझे पैसे देकर ये काम करने के लिए बोला गया। बहुत मार खाने के बाद भी वो आदमी मुसलसल यही कह रहा था। रोमान, इस बात का ख्याल रखना कि यह खबर बाहर ना निकलने पाए। लेकिन अगले ही दिन पूरे मीडिया पर यह खबर हर तरफ फैल चुकी थी कि सीक्रेट सेल जिस बंदे को ईसा खटक समझकर उठा लाया वो कोई और था। यानी वो गवर्नमेंट और लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते थे कि हमने ईसा को पकड़ लिया है। उनके खिलाफ पूरे मीडिया पर एक तूफान बरपा था। तैमूर ने सबसे पहले मिन्हा को वापस लाने का हुक्म दिया तो पता चला वो उसी रोज़ ये मुल्क छोड़कर जा चुकी थी। उसके घर में भी वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। इतने सारे मुतज़ाद अनासिर के बाद तैमूर को नौकरी से निकाल दिया गया। रोमान अब उसकी जगह पर आ चुका था। जब तैमूर उससे मिला तो मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना बोला कि यार, ये जगह जितनी अच्छी है उतनी ही ज़िल्लत भी देती है। मैं खुश हूँ कि बहुत जल्द यहाँ से फ़रार मिल गया है। रोमान को उसकी बात समझ नहीं आई, क्योंकि उस वक्त वो बहुत खुश था। तैमूर ने भी शर्मिंदगी से मुल्क छोड़ दिया। उसके जानने वाले उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आने वाले थे। वो वेटिंग एरिया में खड़ा होकर उनका इंतज़ार करने लगा।
तभी दूर से एक मर्द और औरत उसकी जानिब आते हुए दिखाई दिए। तैमूर भी मुस्कुराते हुए उनके पास आ गया और मजबूती से आदमी का हाथ थामकर मुस्कुराते हुए बोला, बहुत शुक्रिया आपका ईसा खटक। अगर आप मेरा साथ ना देते तो वहाँ की दलदल से मैं कभी नहीं निकल पाता। शुक्रिया मेरा नहीं, मेरी बहन का करो, जिसने अपनी मोहब्बत में तुम्हें दीवाना बनाकर वहाँ से निकलने पर मजबूर कर दिया। ऐसी अदाकारी तो तुमने बहुत अच्छी की थी। कोई रिवॉर्ड तो बनता है ना। एक नज़र मुस्कुराकर मेनहार पर डाली, जो उसे देखकर बड़े फ़ख्र से मुस्कुरा रही थी। वैसे यूएसबी मैंने संभाल कर रखी है। बहुत चालाक हो तुम, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारा दिल मान गया था छुरी से मेरे बाजू पर कट लगाने का? कैसे ना मानता, जब मेरे सामने इतनी हसीन लड़की होगी और मैं उससे मोहब्बत नहीं इश्क करता हूँगा, तो वहाँ से निकलने के लिए मैं कुछ भी कर गुजरने को तैयार क्यों ना होऊंगा। सच बताऊं, मुझे वो नौकरी अच्छी लगती थी, लेकिन अगर मैं वो नौकरी करता तो मैं तुम्हें नहीं पा सकता था। अगर पा भी लेता तो जल्द या बदेर तुम्हें या तुम मुझे खो देती, क्योंकि मैं मौत की नंगी तलवार पर हर रोज़ चलता था। बस अब तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे भाई को कोई एतराज़ नहीं होगा। ईसा खटक ने मुस्कुराकर अपने कंधे उचकाए और नरमी से बोला, पता नहीं क्यों तुम्हारे मुल्क की पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। हाँ ठीक है, मैं स्मगलिंग करता हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं करता, उन लोगों के लिए करता हूँ जिनका ख्याल हुकूमत नहीं रखती। न जाने कितने घरों में राशन मेरे ज़िम्मे है। बिल्कुल, तभी तो आपको छोड़ दिया, वरना क्या मुझसे बच पाते? मुस्कुराकर एक चाबी उसके आगे कर दी और कहा, जानता हूँ थक गए हो गए, तो यूं करो मेरी बहन को अपने साथ ही लेकर आओ। आज रात जश्न की रात है और तुम दोनों की जितनी भी लड़ाइयाँ हैं ख़त्म करके आना।